called as, in case of motor, whatever the induced EMF is induced, that is called as back EMF. And the formula for back EMF is already written over here. That is, back EMF is taken from voltage equation, where voltage equation of DC motor is V is equal to EB plus IARA. EB plus IARA, right? Voltage equation of the DC motor is given by EB is equal to, that is V is equal to EB plus IARA. Now, from this particular thing, we can write what is EB, and that is written over here. So from voltage equation, we can write EB is equal to V minus IARA. Now, what is given? So if any type of problem you have to solve, first of all, you have to think that what data is given and what are the formulae, which formulae we can utilize. Now, first of all, if you know the data, then you can decide which formula we have to use. Now here you can say the first parameter voltage is given. That's why here we have written given parameter is V is equal to 220 volt. Then DC motor has an armature resistance of, armature resistance is denoted by RA, where A stands for armature and R stands for resistance. So that is given here 0.75 ohm. It is drawing from it is drawing an armature current of 30 ampere. Now armature current is denoted by IA, and IA is also given, that is 30 ampere. Now in this particular formula, to calculate the induced EMF, that is back EMF, then back EMF can be calculated by using the formula EB is equal to V minus IRA. Now check which parameters are given and which are missing. Do you have the V? Yes, V is 220 minus. Do you have the value of IA? Yeah, IA is 30. And do you have the value of RA, that is armature resistance? Yes. So we have all the parameters so that we can calculate the EB. Now from this, so I request all the students, that please sit with the calculator, whatever the calculator 97.5 volt written answer is correct or not. Sir, it's correct. Correct, sir. Yeah, so this is your problem number 2, that is on DC motor. I hope that I'm getting you are getting my voice, and this slide is also visible to you. Problem number 2,
a 4-pole. Now again read the problem carefully. If you are understanding what is given and what to calculate, then you can solve any type of problem. This is a problem of end semester which can be asked for 4 marks or 6 marks. But now if you are able to solve this type of problems, you can also solve a small type of problems which are based on MCQ, okay, which might be having 4 options. So if you know the formula and if you know the method how to solve the problems, you can solve MCQ or big problems also. Now read the problem carefully. A 4-pole, यहाँ पर दिए है 4 पोल दिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा P is equal to 4. गिवन डेटा में लिख दिया DC मोटर हैज लैप कनेक्टेड वाइंडिंग. नाउ वी नो दैट लैप कनेक्टेड वाइंडिंग, यहाँ पर लिखा है कि लैप वाइंडिंग दिया है. नाउ द फॉर्मूला फॉर लैप वाइंडिंग इज A is equal to P, means A is equal to number of poles, and in this case pole givens are 4. So I have written the formula in lap winding A is equal to P, that is number of poles, and poles are given as 4. Then next, the flux per pole is 30 milliweber. Whenever their actual the unit of flux is Weber, but here they have mentioned milliweber. That's why this type of things, whenever this type of things are given, you convert it into Weber. So what I have done, phi is equal to, I have written 30 milliweber, and then we have converted that milliweber into Weber. So I have written 30 into 10 raised to minus 3 Weber, because this all quantity should be in the proper format, like flux should be in the Weber, voltage should be in the voltage, okay, then current should be in the ampere, and resistance should be in the ohm. So proper conversion should be there. That's why milliweber is converted into Weber. Then next is armature conductors. Armature conductors are 250. So armature conductors are denoted by Z. So I got another given data, that is total number of conductors are Z and its value is 250. Then when connected, see, when I am reading the problem, I am getting the data, and this data will help me to decide इतने सारे पैरामीटर्स दिए हैं, उसमें से मुझे ये पैरामीटर्स जिस फॉर्मूला में है उसको याद करना है, and then I can solve the problem. Now see, when connected across 230 volt supply, here supply voltage is also given. Motor is connected to 230 volt supply, and that supply is DC because we are learning DC motors. Then armature current of 40 ampere. So IA, armature current is denoted by IA. So this IA is also given, and that IA is 40 ampere. So here they have mentioned armature current is also 40 ampere. Now to find what, हमें कैलकुलेट क्या करना है? द फर्स्ट थिंग टू कैलकुलेट इज बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ का दूसरा नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होता है मोटर में. इवन दो इट इज अ डीसी मोटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर इज AC, and this induced EMF opposes the cause producing it. That's why it is called as back EMF. And speed of the motor, that speed of the motor is denoted by N, and here back EMF is given by EB. Back EMF is given by EB. Now so here we have to calculate the two parameters. The first one is back EMF, and second one is the speed. This we have to find, or we have to calculate. Now what is the standard voltage equation for DC motor? Again you can remember the formula, V is equal to EB plus IARA. ये standard formula है. DC motor का voltage equation V is equal to EB plus IARA. Now what is given? Do you have the value of V? Yes, V is 230 volt. Then do you have the back EMF? No, because back EMF you have to calculate. Do you have the value of IA? Yes, IA is given as 40. IA is given as 40 ampere, and RA. So RA is also given in the data, that is 0.6. Now from this, the only one parameter is unknown, and the name of that parameter is EB. Therefore we can calculate the EB. So EB you will get after the calculation as 206 volt. So in this way we have got the back EMF value for this particular DC motor. Now see here, यहाँ पर फ्लक्स दिया है, स्पीड हमें कैलकुलेट करना है. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आता है जिसमें आपको EB मिलेगा, है ना, जिसमें आपको EB मिलेगा,
उसके बाद आपको फ्लक्स दिखाई देगा, उसके बाद पोल्स और ए दिखाई देगा, उसमें आई ए भी हो सकता है, जेड हो सकता है, राइट, आर ए हो सकता है, या ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पी है, ए है, जेड है और बैक ईएमएफ है, फ्लक्स है, इससे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ फ्रॉम द डेटा वी come to know that there is one formula, that is EB is equal to phi ZN divided by 60 into P by A, and the unit of back EMF is volt. Now if you look at this, if all the parameters we have, then we can calculate the speed from here. Now let us check the parameters. Do you have the value of EB? Yes, EB we have calculated and its value is 206 volt. Now do you have the value of flux? Yes, flux is already given in the data, so it is 30 milliweber. So we have converted into Weber, so the value will be 30 into 10 raised to minus 3 into Z. Z value is 250. Total number of conductors are Z, so Z value is 250. Then N we have to calculate, divided by 60 as it is, and EB as it is. We have calculated, we have taken this calculated value of EB. Then P, number of poles are 4, divided by A. Now as it is a lap winding, therefore A will become also 4. That's why we have put the value of A is equal to 4. Right. Now after calculating this value, you will get the speed, and the final answer will be 1648 rpm. So if you calculate this speed, you will get the answer 1648 rpm. If you have a calculator in front of you, you can calculate this speed and you can check the answer. So this is problem number 2. If some parameters are given, then we can calculate. If armature resistance, armature current and voltage is given, we can calculate back EMF. If you know the back EMF, flux, total number of conductors, poles, and which type of winding, then you can calculate the speed. Okay, I hope that you understood. Shall we proceed for the next problem? If you Yes, understood, then yes, Yes, so that we sir. can Yes, proceed sir. for the next problem. या थैंक यू. इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको मैथमेटिक्स के जंगल में जाना है तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. फॉर्मूले का वेपन सॉर्ड आपको रखना पड़ेगा. उसी तरह छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या बड़े प्रॉब्लम्स आपको डीसी मोटर्स में सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूले का खजाना आपके पास रखना पड़ेगा, वेपन्स आपके पास रखने होंगे, सो दैट जैसे कोई डिफिकल्टी आएगी उसको आपको मार देना है विद द हेल्प ऑफ memorizing the formulae. Okay, and problem is straightforward. Formula याद आया, देखो क्या दिया है, क्या करना है, put the values and find the answer. ये एटलीस्ट इसमें कम से कम 3 MCQ प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं हमें. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, बट इसमें से 3 MCQ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ओके, so let us proceed for the next problem. Okay, now this type of problem is somewhat different and it will be identified from the given data. Now see problem number 3. In this case, a 4 pole, again what is given, P is equal to 4. पहले जैसे मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि नंबर ऑफ पोल दिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है मोटर कौन सा है. पहले प्रॉब्लम पढ़ो, क्या क्या दिया है उसको लिखो, और लिखने के बाद उसका तालमेल लगाकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. राइट, एंड देन you can solve the problem. Then DC motor takes a 50 ampere armature current. This is not the total current. They have mentioned it as a armature current. Total current is different. Total current is denoted by I, or total current is the armature current. So now we should know that armature current should be denoted by, or it is denoted by IA. Armature, and I stands for current. So armature current is given. That's why point number 2 I have 480 कंडक्टर्स. अब इसमें 2 स्टेटमेंट उन्होंने कंबाइन किए हैं. उन्होंने ये भी बोला
जो होते हैं वो z से डिनोट होता है. सो z इज इक्वल आर्मेचर वाइंडिंग. सो इन केस याद याद रखो, यहाँ पर LAP ये लिखा लैप. नहीं है. तो लैप में आप just a minute, lost the connection. I will come back. Just a minute. Okay, now am I audible to all? And I hope that this problem is visible to all of you. Now see here, what I have written here, LAP. LAP का मतलब होता है लैप. लैप, तो लैप में लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट लेटर क्या है, P. इसलिए लैप वाइंडिंग में A इज इक्वल टू P रखना है. दिस इज द लॉजिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, देन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज ऑल्सो गिवन. द फ्लक्स पर पोल इज 20 मिलीवेबर. तो यहाँ पर लिया है 20 इंटू 10⁻³ उसको वेबर में कन्वर्ट कर लिया, मिलीवेबर को वेबर में कन्वर्ट कर लिया है. देन A is equal to P is equal to 4. Number of poles are 4. So in case of lap winding A is equal to 4. Now ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें Z आता है, I आता है, P आता है, A आता है? तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि टॉर्क इक्वेशन का एक फॉर्मूला आता है डीसी मोटर में जिसमें ये सारे पैरामीटर्स आते हैं ऑलमोस्ट. सो द फॉर्मूला इज ग्रॉस टॉर्क TA is equal to 1/2 pi into flux into Z, where Z are the total number of conductors, into armature current and into P divided by A. Now putting all the values you can get the answer, where 1/2 pi into flux का वैल्यू है 20 into 10⁻³ into Z का वैल्यू है 480 into आर्मेचर करंट का वैल्यू है 50 एम्पियर into पोल का है वैल्यू 4 और A का वैल्यू यहाँ पर 4 आया क्योंकि लैप वाइंडिंग है. तो लैप में लैप P A is equal to P. ये लॉजिक है. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपली इन द कैलकुलेटर यू टेक द ब्रैकेट्स. पहला ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू सेकंड ब्रैकेट 20 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट में 480 इनटू ब्रैकेट में 50 इनटू ब्रैकेट में 1. सो और इफ यू आर कैलकुलेटिंग और by taking the proper brackets, there you are reducing the chances of errors. If you are not taking the brackets, then there is a possibility of errors. So to avoid the errors in the calculation, try to take the brackets for each particular value. So after calculation, you will get the value of gross torque, and the gross torque will become TA is equal to 76.394, and the unit of torque is Newton meter. Torque is turning or twisting movement about an axis. Okay, so this is problem number 3. I hope that you understood. Shall we proceed for the next problem? Please type yes in the chat. Yes. Are you understanding? समझ में आ रहा है सबको? Yes. Thank you. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है
very good problem. So try to focus on this. Problem number 4. Now here see, problem number 4 is also, now they have mentioned the motor here. Which type of motor is this? Very important point to be noted. This is the DC shunt motor. This is DC shunt motor. So you can, whenever this DC shunt motor is given, try to draw the diagram if it is the end semester examination. And if it is the MCQ based problem, you can draw it roughly, because your concept will get clear that what are the parameters and exactly where they are. So if you look at the diagram, sometimes in case of INSEM examination, this diagram of DC shunt motor with different parameters like total current I, then ISH, then RSH, field winding, RA, A1, A2, these are the brushes, and this is the armature current, this is the supply voltage. तो ये सब डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो है लास्ट इन सेम एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था. ये डायग्राम 2 मार्क्स. दिस वाज अ डायग्राम फॉर 2 मार्क विच वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. तो इसमें 2 मार्क का डायग्राम भी आपको मिल गया, इसमें एमसीक्यू प्रॉब्लम भी मिल गए, और इसमें एक 4 मार्क या 5 मार्क का प्रॉब्लम भी आपको मिल गया. सो दिस इज व्हाट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम trick is. Okay, so in this case, if you look at, this is a DC shunt motor, so we should always remember that DC shunt motor में जो field winding होता है, the field winding connected is always this field winding is always connected in parallel with the armature. आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग कनेक्ट होता है डीसी शंट मोटर में. फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शंस होते हैं F1 एंड F2. फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है RSH. RSH स्टैंड्स फॉर शंट फील्ड रेजिस्टेंस. आर्मेचर जो रोटेटिंग मेंबर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है RA. आर्मेचर में जो अभी यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, डीसी है. डीसी मोटर को सप्लाई दिया है 250 वोल्ट. इसमें से टोटल करंट जाएगा I, where this I is divided into 2 parallel path. तो इसमें से एक करंट आर्मेचर में जाएगा which is called as IA, और दूसरा करंट ISH जो फील्ड वाइंडिंग में जाएगा. So from that we can write I is equal to IA plus ISH. एक फॉर्मूला हमें मिल गया. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I होता है V डिवाइडेड बाय R. तो अगर मैं यहाँ पर SH नाम लगाता हूँ शंट, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा I is equal to ISH is equal to V divided by RSH. So like this, you can remember these diagrams also for DC series and shunt motor. Now, voltage is given 250 volt. So in the given data, I have written here V is equal to 250 volt. It is a DC shunt motor. That is why I have drawn this figure for DC shunt motor, so that I can understand the concept. Then मोटर टेक्स ए लाइन करंट ऑफ 20 एम्पियर. अब यहाँ पर देखो, ये लाइन करंट का मतलब ही होता है टोटल करंट I. सो हियर आई कैन राइट I और IL. यहाँ पर उन्होंने आर्मेचर शब्द नहीं बोला है, उन्होंने बोला है लाइन करंट. लाइन करंट मतलब जो टोटल करंट होता है वही. अब टोटल करंट को आप लाइन करंट बोलो या टोटल करंट I बोलो, जैसे कि हमने टोटल करंट को I बोला है यहाँ पर. सो it doesn't have any problem. You can take I or IL. So you can also say here IL is equal to IA plus ISH, or I is equal to IA plus ISH. Okay. Then total current is given. Total current is 20 ampere. 20 ampere current दिया है. Then resistance of shunt field winding is 200 ohm. अब यहाँ पर देखो ये जो दिया है ना RSH, तो ये RSH जो होता है that is shunt field resistance. अब इसका वैल्यू दिया है 200 ओहम. RSH दिया है 200 ओहम. So I have written here RSH is equal to 200 ohm. Then armature resistance is 0.3 ohm. Now what is the value of armature resistance? Armature resistance is given as 0.3 ohm. Now find the armature current and back EMF. अब यहाँ पर हमें to find कैलकुलेट क्या करना है, आर्मेचर करंट करना है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर हमें IA कैलकुलेट करना है. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है EB. EB का मतलब होता है बैक EMF. तो ये दो पैरामीटर्स हमें सॉल्व करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम टोटल करंट इज I, विच इज द एडिशन ऑफ IA प्लस ISH. ये फॉर्मूला हमें मिल गया. नाउ फ्रॉम ओहम्स लॉ आई कैन राइट फॉर दिस ISH, I can write ISH is equal to V divided by RSH. अगर इस SH को मैं जरा सर्कल
करता हूं तो ये सिंपली ओहम्स लॉ हो जाएगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। लेकिन ये शंट करंट है, इसलिए फॉर्मूला हो गया ISH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RSH। नाउ अब हमें देखना है कि इसमें से क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं, सो दैट आई कैन कैलकुलेट ISH। बिफोर कैलकुलेटिंग दिस, अब आई वांट टू टेल यू वन ट्रिक। जैसे कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, उन्होंने बोला है आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ फाइंड करो। तो आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको याद आएगा, जिसका नाम होगा EB इज इक्वल टू V माइनस IA RA। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बैक ईएमएफ EB हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दिया था ना बैक ईएमएफ कैलकुलेट करो। सो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए वोल्टेज, हमारे पास होना चाहिए आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब इसमें से EB कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास IA नहीं है। टू कैलकुलेट EB वी डोंट हैव IA, तो IA कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर IA कैलकुलेट करना पड़ेगा, और IA कैलकुलेट करने के लिए ये सारा मेथड है, ये फॉर्मूला हमने यूटिलाइज किया है। IA कैलकुलेट करने के फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, EB इज इक्वल टू V माइनस IRA। बट IA नहीं था, दो पैरामीटर्स अननोन हो रहे थे, इसलिए IA को कैलकुलेट करने के लिए हमें I इज इक्वल टू IA प्लस ISH फॉर्मूला लिखना पड़ा। देन फ्रॉम ISH इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RSH। सो 250 voltage value is 250 divided by RS is 200. So we have got the value of shunt current as 1.25 ampere. Okay, then ISH मिलने के बाद हमें from this formula we can calculate the IA. From this IA is I minus ISH. अब I होता है टोटल करंट है 20 माइनस ISH हमने कैलकुलेट किया है 1.25, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया। So 20 minus 1.25, we will get the armature current as 18.75, and then we have put that particular value in the formula of EB, that is 18.75. Now if you calculate the EB, तो EB is V minus IARA. अब V का वैल्यू है 250, so 250 माइनस IA का वैल्यू इन ब्रैकेट लिया है 18.75 इंटू RA का वैल्यू है 0.3 जो यहाँ पर मेंशन किया था। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, ब्रैकेट लिया 250 माइनस ब्रैकेट में 18.75 इंटू 0.3 एज इट इज कैलकुलेटर में टाइप करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 244.375 वोल्ट। बैक ईएमएफ यूनिट इज 244.375 वोल्ट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट this particular back EMF using this type of method. So I hope please remember this diagram is very important. Please remember the diagram of DC shunt motor and series motor. Okay, have you calculated the answer? Have you got the same answer what is calculated by me? आप कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं? बाद में इसका स्नैपशॉट ले लेना और इसको वेरीफाई करना। डू द कैलकुलेटर प्रैक्टिस। कैलकुलेटर और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कैलकुलेशन करते समय आप ब्रैकेट लीजिए। ब्रैकेट लेने से आपका एरर कम होगा। ब्रैकेट नहीं लोगे तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। हो सके उतना ब्रैकेट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो आई विल टेल यू, छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी आप ब्रैकेट यूज करो। जैसे कि यहाँ पर दिया था 250, इसको भी आप ब्रैकेट ले सकते हैं 250 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 200। इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा। कोई एरर होने की गुंजाइश बहुत कम होती है ब्रैकेट से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डीसी शंट मोटर। देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डीसी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में एक ही टाइप का प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में आता है और ये प्रॉब्लम आपके सामने है, बट दिस इज रिलेटेड विद द डीसी सीरीज मोटर। ओके, नाउ सी हियर डीसी सीरीज मोटर। जैसे यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा डीसी सीरीज मोटर, करना आपको ये है, अगर आपका एंड सेमेस्टर आपके कॉलेज में हो रहा है, आपको फिजिकली कॉलेज में आकर एग्जाम देना है, तो आपको पेपर लिखना पड़ेगा। तो पेपर लिखने के लिए इतना सिस्टमेटिक आंसर, इतना डेटा लिखना पड़ता है इन द सिस्टमेटिक वे। आपको क्या फाइंड करना है, और इस टाइप के प्रॉब्लम 5 या 6 मार्क्स के लिए एंड सेम एग्जामिनेशन में आते हैं। 6 में से 6 कब मिलेंगे? जब आपने इतना सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन पेपर में लिखा है। सो यू कैन ट्रीट
this as a you can treat this as a one reference, so that how to write the paper. Now in case of MCQ, this problem can be divided into 2-3 MCQs. जैसे ही लिखा है यहाँ पर DC सीरीज मोटर, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. So here in this particular corner I have drawn the diagram of DC सीरीज मोटर. आप इसको जूम करके देख सकते हो. अब सबसे important point to be noted, the difference between the windings of DC सीरीज मोटर and DC शंट मोटर. DC सीरीज मोटर जो था उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे फॉर फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और जो वायर है वो पतला है. सो द फील्ड वाइंडिंग इज थिन एंड हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन केस ऑफ शंट मोटर, वेयर एज फील्ड वाइंडिंग इज थिक. फील्ड वाइंडिंग देखोगे तो थोड़ा सा मोटा है और इज हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स है. Okay, now after drawing this diagram, you can see total voltage supplied to the motor is V, and which is responsible for the flow of current I. Current I is flowing resistance of field winding is RSC. Same current I is entering into the field winding, where this current is now called as a series field current, ISE. Now the same current is entering into the armature, so it is called as IA. Now here I can write in the DC series motor, total current I is equal to series current ISC is equal to armature current IA. As you know that in the series current remains same. Now in case of DC series motor, you remember the voltage equation, V is equal to EB plus IARA. ये तो कॉमन था, लेकिन इसमें एक ही करंट होने की वजह से यहाँ पर आए IA प्लस RSC. तो ये RSC का ड्रॉप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आया है, बिकॉज सीरीज में था. उस केस में RSH नहीं आया क्योंकि वो पैरेलल में था. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है. यहाँ पर सीरीज में आया है, इसलिए हमें ये वोल्टेज ड्रॉप लेना पड़ा IA इंटू RSC. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V. अब हमें दिया है V. अब यहाँ पर देखो 4 पोल, तो मैंने डेटा लिख दिया P इज इक्वल टू 4. देन वोल्टेज दिया है 250, तो वोल्टेज दिया है 250. उसके बाद मोटर हैज वेव कनेक्टेड आर्मेचर. वेव वाइंडिंग के लिए A इज इक्वल टू 2 आता है वैल्यू. ओके, उसके बाद Z दिया है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स विद 200 कंडक्टर्स. तो यहाँ पर Z दिया है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 200. देन फ्लक्स दिया है 25 मिली वेबर. अगेन इसको वेबर में कन्वर्ट कर लो, तो ये लिखना पड़ेगा 25 इंटू 10⁻³ वेबर. उसके बाद यहाँ पर लिखा है I इज इक्वल टू IL. यहाँ पर लिखा है दैट इज 60 एम्पियर. सो आई कैन ऑल्सो राइट I इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू ISC, क्योंकि तीनों सीरीज में है. सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है, so that is 60 ampere. Then motor takes current of this 60 ampere, that is total current I is equal to ISC from the supply. Armature resistance is 0.15. तो यहाँ पर लिखा है, डेटा में लिखा होगा RA is equal to 0.15. Armature resistance RA, A for armature, R for resistance. लिखते टाइम उल्टा लिखा है. Then series field winding resistance RSC को लिखा है 0.2 ओम जो दिया है. कैलकुलेट द स्पीड. सबसे पहले पैरामीटर हमें है स्पीड को कैलकुलेट करना है. स्पीड डिनोट होता है n से, तो हमें n कैलकुलेट करना है. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स आते हैं, मतलब रिलेटेड टू है. द फॉर्मूला इज, हमें कॉमन फॉर्मूला है EB इज इक्वल टू 5ZN डिवाइडेड बाय 60 इंटू P बाय A. अब हमें देखना है कि ये फाइनल फॉर्मूला है. How to calculate the speed? Speed calculate करने के, do we have the poles? Yes. Do we have the value of A? Yes. Do we have the speed? No. We have to calculate the speed. Speed calculate करना है. Do we have the value of flux? Yes. Do we have the value of Z? Yes. लेकिन यहाँ पर EB भी मिसिंग है, 2 पैरामीटर मिसिंग है, इसलिए हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो हमें EB फाइंड करना है. बट इन केस ऑफ सीरीज मोटर V इज इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस IRAC होगा. तो देखो
यहाँ पर V का वैल्यू दिया है, V is 250, EB हमें कैलकुलेट करना है, so this value we have to be calculate EB. Then IA value is given as 60 because IA is equal to ISC is equal to I, तो वो 60 दिया है, that value we have taken. Now IA कॉमन लिया तो ये हो जाएगा RA प्लस RSC, तो RA का वैल्यू लिया है यहाँ पर 0.15 और RSC का लिया है 0.2. So after calculating, the value of EB will become 229. 229 आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर IA यहाँ पर जो लिखा है वो कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं RA प्लस RSE, ये ऐसा लिखा है यहाँ पर, इसलिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो EB का वैल्यू मिलेगा 229. अब जैसे आपको EB का वैल्यू मिला, पुट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ EB, तो EB का वैल्यू हमने रखा है 229, तो यहाँ पर ये लिया है 229. अब एक ही पैरामीटर अननोन है जिसका नाम है स्पीड, सो फ्रॉम दिस बाय पुटिंग द वैल्यूज you can find the answer that speed is equal to 1374 rpm. So this is how you can calculate the speed of DC series motor. So please mark this question as important, and this was problem number 5. Yes, I hope that you have understood. Only one difference is that, and that difference is related with the voltage equation formula, and that voltage equation formula is mentioned as V is equal to EB plus IARA plus एक एडिशनल वाइंडिंग सीरीज में आ रहा है, इसलिए उसका वोल्टेज ड्रॉप लिखना पड़ेगा. वोल्टेज ड्रॉप सिंपली होता है V इज इक्वल टू I इंटू R. मतलब अब यहाँ पर I जो है वो है IA और R जो है वो है RSC. दैट्स ऑल. IA प्लस RSC प्लस ब्रश ड्रॉप अगर दिया है तो वो आप कंसिडर कर सकते हो. जनरली ब्रश ड्रॉप इज निग्लिजिबल. ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 5. Have you understood all the problems of DC motors? Concept clear? Any doubt? सर वहाँ पर A इक्वल टू 2 कैसे आया सर? इन प्रॉब्लम से ही बनते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द MCQ. If you understood, please type yes quickly in the chat box so that we can proceed for the next. Yes, thank you all. Now the next is related with the superposition theorem. Okay, सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रॉम द सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द करंट. ओके, यस मोबिन, एनी प्रॉब्लम? नो सर. In case of wave winding A is equal to 2 होता है, and in case of lap winding A is equal to P होता है. याद रखना ये. ठीक है? यस सर. Then superposition theorem. एक्चुअली सुपरपोजिशन थ्योरम में कम से कम 2 वोल्टेज सोर्स या एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होना चाहिए. करंट सोर्स के प्रॉब्लम आपको सिलेबस में नहीं है, सो सिंपली यू टेक द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द 2 battery with number of resistances connected maybe in series or parallel. तो ये resistance, ये simple diagram है where there are 3 resistance with battery. So this is battery number 1, so we'll call it as a V1. This is a voltage source or battery, we'll call it as a V2. Let us call this first resistance as R1, let us call this second resistance as R2, and the center resistance as R3. Okay, so don't consider this diagram. This is the simple diagram with 2 voltage sources and some resistances. As it is a DC circuit, all the parameters are related with the DC. अब करना यह है हमें सुपरपोजिशन थ्योरम में करना क्या होता है, अगर मुझे सपोज ये R3 है, if I want to calculate the current flowing from R3 resistance, तो मुझे करना यह है कि सबसे पहले V1 कंसीडर करो बैटरी, देन
V2 को शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट दिस बैटरी एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू R3 यूजिंग V1। पहले वोल्टेज सोर्स की वजह से R3 में से जो करंट फ्लो होगा उसको कैलकुलेट करो। जैसे कि सपोज V1 की वजह से करंट मुझे मिला I3, रेजिस्टेंस 3 है तो 3 डैश, ठीक है। फिर मैंने अलग अलग कैलकुलेशन करके V2 की वजह से करंट फाइंड किया जो R3 से जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ V2 current flowing from R3 is, let us consider as I3 double dash, दूसरा सोर्स है, and this I3 dash is due to V1, ठीक है। अब दोनों की वजह से इसमें से जो करंट जाएगा, that total current flowing from the resistance R3 is I3। इसका वैल्यू क्या है? बिकॉज ऑफ बोथ वोल्टेज सोर्सेस V1 एंड V2 की वजह से जो करंट फ्लो होगा दैट इज I3 एंड दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ I3 डैश, मतलब पहले वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट आया प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ सेकेंड करंट दैट इज I3 डबल डैश। सो वी हैव टू कंसिडर वन सोर्स एक्टिंग अलोन, रिप्लेस ऑल द एनर्जी सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट करना है। अगर करंट सोर्स आया तो उसको ओपन सर्किट करना है, बट करंट सोर्स इज नॉट इन योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर ओनली बैटरी सोर्सेस, ओनली बैटरीज। Let us take a problem so that you can understood. Just a minute. Okay, for again this PPT I have shared. Now let us take the problem of DCC, that is superposition theorem. Okay, so this is the problem on superposition theorem. You can draw this particular diagram. You can zoom your screen and you can go to the circuit diagram here. This is our diagram question. Okay, is it visible to all? You can zoom your screen. Please type yes if it is visible. Yes. Now see here, the first battery voltage given as 20 volt. The first battery voltage is given as 20 volt. Second battery voltage is given as 30 volt. Okay. Then these are the three resistances. अब करना ये है, सुपरपोजिशन में करना क्या होता है, टोटल जो करंट है 16 ओम में से हमें फाइंड करना है। इस सर्किट में कम से कम सुपरपोजिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी सर्किट दिया होता है उसमें कम से कम दो वोल्टेज सोर्स, कम से कम 2 सोर्सेस चाहिए। एक तो 2 वोल्टेज सोर्स चाहिए, नहीं तो एक करंट सोर्स या दूसरा वोल्टेज सोर्स चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। और दोनों की वजह से जो करंट जाएगा उस रेजिस्टेंस में से उसको बोलेंगे हम टोटल करंट, एंड दैट टोटल करंट इज गिवन। सपोज यहाँ पर टोटल करंट इसमें से जाएगा I16, राइट। दोनों बैटरी की वजह से इस 16 में से जो करंट जाएगा उसका नाम हमने दिया है I16, वो यहाँ पर लिया है टोटल करंट I16। अब I16 इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ I16 जो है वो टोटल करंट है, दैट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ I16 डैश। अब I16 डैश कब होगा? I16 डैश जब आप एक बैटरी कंसीडर करोगे,
जब आप एक बैटरी कंसीडर करोगे तो आपको मिलेगा I16 डैश। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने कंसीडर किया 20 वोल्ट का बैटरी सर्किट में है और 30 वोल्ट बैटरी को आपने शॉर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से जो करंट मिला आपको वो I16 डैश था, तो ये मिल जाएगा I16 डैश। और उसके बाद जब आप 20 वोल्ट 30 वोल्ट का बैटरी कंसीडर करोगे, अगर आप 30 वोल्ट वाला बैटरी कंसीडर करोगे और 20 वोल्ट को शॉर्ट करोगे तो आपको मिलेगा I16 डबल डैश। तो इनका अल्जेब्रिक सम करके जो फाइनल करंट आएगा, वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज आवर फाइनल आंसर। So what is superposition theorem? A linear active bilateral network consisting of two or more than two energy sources. जैसे कि हमारे केस में दो वोल्टेज सोर्स है, so that is 20 volt and 30 volt battery sources. So we can solve the problem of superposition theorem. एक ही वोल्टेज सोर्स होगा या एक ही करंट सोर्स होगा तो आप सुपरपोजिशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कम से कम दो बैटरीज होने चाहिए। एंड यू रिमेंबर दिस प्रॉब्लम, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमें ये दिया है प्रॉब्लम, फाइंड द करंट थ्रू 16 ओम रेजिस्टेंस। अब दोनों बैटरीज है तो दोनों बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है I16। हमने ऐसा एज्यूम किया है कि I16 करंट है दोनों बैटरी की वजह से, ठीक है। तो विच इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ, अगर मैं पहली बैटरी को कंसीडर करता हूं और दूसरी बैटरी को शॉर्ट करता हूं, शॉर्ट सर्किट करता हूं, सो दैट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ओनली। तो मुझे मिलेगा I16 डैश, पहले बैटरी की, डैश का मतलब होता है पहली बैटरी, प्लस इट इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, अब नाउ आई हैव कंसीडर्ड the 30 volt battery. So if I have considered the 30 volt battery, we have to short circuit the 20 volt battery. अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, अब मैंने 30 वोल्ट बैटरी को कंसीडर किया है, तो 30 वोल्ट बैटरी की वजह से मुझे जो करंट मिलेगा फ्रॉम दिस 16 ओम रेजिस्टेंस, दैट विल बिकम I16 डबल डैश। दूसरी बैटरी की वजह से मुझे मिला I16 डबल डैश। ये अल्जेब्रिक सम है, दोनों वोल्टेज या बैटरी की वजह से अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो आपको एडिशन करना है, और दोनों बैटरी की वजह से अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है। दिस इज अल्जेब्रिक सम। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, देखो पहले यहाँ पर कंसीडर 20 वोल्ट बैटरी एक्टिंग अलोन। इसका मतलब मुझे करना क्या है, यहाँ पर दिया है 20 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पर दिया है देखो 20 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर हमने अकेले में कंसीडर किया है, एंड शॉर्ट सर्किट 30 वोल्ट सप्लाई, या इस यहाँ पर जो बैटरी था हमने उसको शॉर्ट कर दिया है, तो सर्किट ऐसा बन गया 4 ओम, 24 ओम, 16 और ये 16 ओम का रेजिस्टेंस। अब 20 वोल्ट की वजह से अगर आप करंट को ट्रेस करोगे, एक करंट 4 में से जा रहा है, एक 16 में से जा रहा है और दूसरा 24 में से जा रहा है, ओके। आप इसको जूम करो ये एरिया, सो दैट यू कैन गेट द क्लियर व्यू, ओके। तो बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट सोर्स, I want to calculate what is the value of current flowing from 16 ohm resistance, and that can be calculated by using current division rule. करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला क्लास में लिख के दिया था। सो जिस रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड करना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। अब 16 में से करंट फाइंड करना है तो 16 के अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, 24। सो 24 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 16 प्लस 24 इनटू टोटल करंट IT। अब टोटल करंट IT जो होता है वो आपको सीरीज पैरेलल से कैलकुलेट करना है। नाउ सी हियर, अब यहाँ पर 16, ये सेम डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट यू कैन कॉल 16 पैरेलल विद 24, तो आंसर आएगा 9.6। तो ये 9.6 का रजिस्टर यहाँ पर आया, ऊपर ऑलरेडी ये 4 ओम वाला था, इसको एज इट इज रख दिया 4 ओम रेजिस्टेंस, ओके। देन 4 और 9.6 सीरीज में आए हैं, ये 4 ओम रजिस्टर और 9.6, अगर आप सर्किट ऐसे ट्रेस करोगे तो वो सीरीज में है,
ओके, एंड फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट टोटल करंट IT। तो टोटल करंट IT होगा टोटल वोल्टेज 20 डिवाइडेड बाय दोनों सीरीज में, तो एडिशन होगा 9.6 प्लस 4, तो मुझे IT मिलेगा 1.470। तो IT का वैल्यू मैंने यहाँ पर CDR में रख दिया। तो यहाँ पर देखो CDR I16 डैश, I16 किसकी वजह से है? I16 डैश इज ड्यू टू 20 वोल्ट बैटरी, ड्यू टू 20 वोल्ट बैटरी, 20 वोल्ट बैटरी की वजह से हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज 24 एज इट इज, 16 प्लस 24 एज इट इज। अब जो IT का वैल्यू हमारे पास ऊपर नहीं था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिया। तो I16 की वजह से I16 जो होगा बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट बैटरी, वो करंट I16 में से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था, तो ये डाउनवर्ड एरो लिया हमने और उसका आंसर हमें मिला 0.882। तो ये हमें मिला फर्स्ट पार्ट, है ना, I16 मिला। I टोटल करंट है I16 which is the algebraic sum of is equal to I16 dash plus I16 डबल डैश। ठीक है, I16 ये फॉर्मूला है, I16 is equal to I16 dash plus I16 डबल डैश। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस करंट हमें एक करंट मिल गया, दैट इज I16। तो ये हमें I16 डैश जो मिला है वो 20 वोल्ट की वजह से मिला है, 20 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है 30 वोल्ट की वजह से हमें कितना करंट मिलेगा 16 ओम रेजिस्टेंस में से। नाउ तो 30 वोल्ट बैटरी हमने कंसीडर किया है और अपोजिट बैटरी को शॉर्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट बैटरी शॉर्ट सर्किट किया है, 30 वोल्ट को कंसीडर किया है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 4 और 16 पैरेलल में हो जाते हैं, तो उसका आंसर आएगा 3.2। तो 3.2 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला और ये जो ऊपर वाला 24 था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वो एज इट इज है। तो आप सर्किट अगर ट्रेस करोगे तो 24 और 3.2 सीरीज में हो जाएंगे। सो टोटल करंट इज 30 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 3.2, ये सीरीज में इसलिए एडिशन हुआ, तो टोटल करंट आ गया 1.102 एम्पियर। अब यहाँ पर ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस आते हैं जहां पर करंट डिवाइड होता है वहां पर हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो करंट डिवीजन रूल लगाने के बाद हमें ये फॉर्मूला से मिला, जिसमें से करंट कैलकुलेट करना है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस। सो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस है 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 4 प्लस 16 इनटू टोटल करंट IT। सेम ऊपर वाला जो स्टेप था वही रिपीट किया है ऑलमोस्ट। तो हमें करंट मिला है 0.220, यहाँ पर मिला करंट 0.220। अब ये 30 की वजह से एक करंट यहाँ पर गया, एक 4 ओम में गया और एक 16 में से नीचे गया, so that is why the direction will be opposite। and we have also mentioned that if the two directions are same we have to add these two current। अब I16 का वैल्यू था 0.882 और I16 डैश का वैल्यू था 0.220, तो इसको ऐड करने के बाद आंसर मिला 1.102। even though you can solve this problem by KVL and you can verify the answer। ये आपके लिए होमवर्क है, यही प्रॉब्लम आपको KVL से सॉल्व करना है और उसका आंसर 1.102 आता है क्या चेक करो। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 60 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KVL। होमवर्क करोगे ना सॉल्व KVL से? Yes. इस टाइप का प्रॉब्लम हमने क्लास में लिया है, यस और नो? यस और नो? यस। तो इसको KVL से सॉल्व करके देखो आंसर मैच होता है कि नहीं। ओके, नाउ गोइंग टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। इसका वापस हम एक बार देखेंगे। ये 1 घंटे में इन 1 hour इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये लास्ट प्रॉब्लम लेंगे, बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो प्रॉब्लम है ये थेवेनिन्स थ्योरम का प्रॉब्लम है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा आप जूम कम कर सकते हो। लास्ट प्रॉब्लम ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। अब थेवेनिन्स थ्योरम ये है, अगर कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क आपको दिया है, सपोज इफ एनी लीनियर एक्टिव नेटवर्क आपको दिया है तो उसमें से आप करंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। जैसे कि ये एक बॉक्स है, इट इज एनी टाइप ऑफ सर्किट, इसमें बैटरीज और रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं और
मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या है, तो दिस इज अ लीनियर एक्टिव नेटवर्क, so I can find current flowing from this circuit using Thevenin's theorem, that is when the REL is over here, and I can find current flowing from this. So the formula will become IL is equal to, एक formula additional यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, IL is equal to VTH divided by RTH plus REL. This is according to the Ohm's law. ये Ohm's law ये as two resistances are connected in series, यहाँ पर एक्चुअली सर्किट दिया नहीं है, when two resistances are connected in series, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो एक VTH है, उसके बाद एक RTH दिया है और एक REL दिया है, तो इस टाइप के सर्किट के लिए अगर आप इसको VTH बोलोगे, इसको RTH बोलोगे और इसको REL बोलोगे, so any particular network connected in series parallel can be replaced by single source of EMF that is called as VTH and a series resistance RTH that is connected across the same terminals A and B. अब ये बॉक्स में जो था, जितने भी जैसे कि 100 रेजिस्टेंस थे, 100 बैटरीज थे, इस बॉक्स के अंदर के 100 रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर लिया यूजिंग सीरीज पैरेलल कनेक्शन, और उसका नाम दिया RTH, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर इसमें 10 बैटरीज थे तो 10 इस बॉक्स के अंदर, तो वो 10 बैटरीज को हमने सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर लिया है, एंड REL इज एज इट इज। तो अब अगर हम इसको KVL लगाएंगे या यूजिंग ओम्स लॉ, तो IL होता है VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, क्योंकि RTH और RL सीरीज में है। तो यूजिंग दिस we can calculate current flowing through any resistance using Thevenin's theorem. So what is the statement of Thevenin's theorem? Any linear active network can be converted into single source of EMF, that is VTH, and a single resistance RTH connected in series. And now if you are reconnecting the RL into the circuit, then you can calculate current flowing from this particular circuit, that is load current IL. तो कोई भी नेटवर्क जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स है, उसको एक ही वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, और अगर कितने भी रेजिस्टेंसेस सर्किट में है तो उसको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, देन यू कैन कैलकुलेट IL यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। अब यहाँ पर देखो, लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ द प्रॉब्लम so that we can solve this problem. How many resistances are there in the circuit? सर्किट में कितने रेजिस्टेंसेस है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। इस प्रॉब्लम के सर्किट में कितने रेजिस्टेंसेस है? 3 रेजिस्टेंस है। सो ऑलरेडी आपको बोला था कि जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में होंगे उसको यहां से पहले, मतलब AB को कनेक्ट करने से पहले, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से पहले, जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में है, लोड रेजिस्टेंस से पहले कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर 3, बट लोड रेजिस्टेंस से पहले सर्किट में कितने रेजिस्टेंसेस है? 2 रेजिस्टेंसेस है ना। ये तो RL है, लोड रेजिस्टेंस RL है, ठीक है। इससे पहले सर्किट में 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो लोड को कनेक्ट करने से पहले जितने भी रेजिस्टेंसेस सर्किट में होंगे उसको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जितने भी बैटरीज सर्किट में होगी उसको सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी देयर इज 1 बैटरी, तो उसको अब VTH में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थेवेनिन्स वोल्टेज देखो, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, प्रॉब्लम सिंपल है, सीरीज पैरेलल और KVL यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देयर इज अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम and resistance of 1 ohm, and the question is find the current flowing through load resistance RL. Find current flowing through load resistance RL. करंट फाइंड करना है RL में से। अब RL का वैल्यू कितना है? 1 ओहम। RL का वैल्यू है 1 ओहम। So using series this Thevenin's theorem,
we have to find current flowing through RL and the value of RL is 1 ohm. ठीक है. Now step number 1, if you want to solve the problem of Thevenin's theorem, step number 1 होता है जो भी RL दिया है या जिस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए बोला है उस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा दो एंड देन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B. उस वोल्टेज को हमने नाम दिया है VTH. अब देखो यहाँ पर RL रिमूव कर दिया है और इस पॉइंट के अक्रॉस हमें VTH फाइंड करना है. अब अगर आप ये टर्मिनल देखोगे A एंड B, सो दीज आर कॉल्ड एज ओपन टर्मिनल्स, क्योंकि इसमें से RL रिमूव हो गया. जैसे RL ब्रांच हटा दी सर्किट ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो वोल्टेज फाइंड करना है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है या VTH भी आप बोल सकते हो, बिकॉज थेवेनिन्स इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट. अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है, B पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है. सो लुक एट फ्रॉम दिस साइड. तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है अक्रॉस 2 ओहम. अब 2 ओहम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर. V इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो R का वैल्यू तो यहाँ पर दिया है 2 ओहम. अब आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा. देयर आर 2 मेथड्स. एक तो आप ओम्स लॉ यूज करो, V डिवाइडेड बाय R. ये 2 और 2 ये सीरीज में कनेक्टेड है तो बन गए 4. 4 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 1 एम्पियर. या आप KVL से भी फाइंड कर सकते हो करंट. दैट इज -2I प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये करंट आ जाएगा 1 एम्पियर फ्रॉम. अब ये 1 एम्पियर करंट जाएगा बैटरी में से 2 ओम या 2 ओम में से. तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. द फॉर्मूला इज ओम्स लॉ I इंटू आर. तो 2 ओम में से करंट गया 1 एम्पियर, तो यहाँ पर लिया 1 और रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड वोल्टेज फाइंड करना है वो है 2. तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लिया 2. सो हमें वोल्टेज मिला 2. So that is why voltage across 2 ohm resistance is 2, which is nothing but your VTH. ठीक है, ये वोल्टेज फाइंड किया. अब सेकेंड स्टेप आता है, उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते समय एक ही बात याद रखना है, जितने भी बैटरीज है उसको शॉर्ट करना है. तो यहाँ पर जो बैटरी था 4 वोल्ट का उसको शॉर्ट कर दिया. तो यहाँ पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बचते हैं सर्किट में. And if you look at from this A to B, so these 2 resistances are connected in parallel. So though parallel with though any 2 similar resistance if they are connected in parallel, उसको है ना, उसको हाफ कर देना है. So 2 parallel with 2 1. तो ये फॉर्मूला है IL is equal to VTH upon RTH for Thevenin's theorem. अब इसमें से पैरामीटर्स देखो आपके पास क्या क्या आया है. So what is the value of VTH? आपने VTH कैलकुलेट किया जिसका वैल्यू मिला 2. तो ये 2 यहाँ पर पुट किया हमने. उसके बाद RTH का वैल्यू हमने फाइंड किया 1. तो ये 1 फाइंड किया. और RL जो दिया था 1 उसको वापस लगा दिया. तो ये आ गया 1 एक्चुअली. सो ये 2 और 2 ये दोनों रेजिस्टेंस को आपने एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया. उसको बोल दिया RTH. जो बैटरी था उसको आपने VTH में कन्वर्ट कर दिया. और उसके बाद फाइनल स्टेप है, जहां से रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था वो रेजिस्टेंस वहीं पर लगा दो. जैसे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू था 2 ओम. अब ये सर्किट हो जाएगा क्लोज. ये है आपका VTH. तो इस केस में IL होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL और RTH सीरीज में है. सो दिस फॉर्मूला इज रिटन फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम, दिस वन. एंड द फाइनल आंसर इज 1 एम्पियर. आप इसको भी KVL लगा के आंसर फाइंड करो एंड मैच द आंसर्स वेयर ऑल आंसर्स आर मैचिंग और नॉट. सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय KVL. लूप नंबर 1 एंड ये रेजिस्टेंस वाला लूप नंबर 2 लेना है, दैट इज I2. सो वेरीफाई योर आंसर वेदर इट इज 1 और नॉट यूजिंग. तो हमें स्टेप्स याद रखने हैं. नंबर 1, इन केस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम जिस रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड करना है उसको हटा दो. रिमूव लोड रेजिस्टेंस RL फ्रॉम द सर्किट. स्टेप नंबर 2, जहां से आपने RL हटाया है वहां पर आपको वोल्टेज फाइंड करना है जिसका नाम है VTH बाय यूजिंग KVL और बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द VTH.
Then after VTH, you have to find RTH. Next step, you have to calculate the equivalent resistance. While calculating equivalent resistance, जितने भी बैटरीज सर्किट में है उसको शॉर्ट करना है, और जो भी रेजिस्टेंस सर्किट में आएंगे उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट सिंगल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज RTH. एंड फाइनली, अगर आपके पास जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसको आपने सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, जितनी भी बैटरीज थी उसको सिंगल बैटरी में कन्वर्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था उसको वापस सर्किट में लगा देना है, देन that you will get after that you will get the formula IL is equal to VTH upon RTH, and by using the formula you can calculate the Thevenin's that is load current flowing from the resistance. So that's all for today. अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो अगेन वी विल टेक अनदर सेशन, क्योंकि इतने ज्यादा प्रॉब्लम हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो प्लीज टाइप योर रोल नंबर्स in the chat box. If anybody do not understood, we can also take one another session only on superposition and Thevenin's theorem. Sir, Please type your attendance in the chat box, your roll numbers. sir, ठोका sir. Those who have typed their roll numbers in the chat box, they can leave the group. MCQs you can get from internet. Lots of MCQs are there on the net, so you can search on the net. From our side, actually we can't provide you MCQs. That are some restrictions. Try to understand. Yes, those who have typed the attendance, please type your roll numbers in the chat box and you can leave the group.